We have among us our next speaker, Dr. Vikas Arora, sir. His director, Sunshine Group of Colleges, Rajkot, Gujarat. Dr. Vikas Arora is a motivational speaker, happiness coach. He is a motivational speaker, corporate trainer, and happiness coach of international repute. He is a management graduate and is in the field of training and education for the past 25 years. Till date, he has conducted more than 1,000 seminars and workshops and has trained more than 2 lakh people in India and abroad. His training program are well known for their high quality content backed by his unique and entertaining style of delivery. He is having a worldwide exposure of more than 14 countries, including USA, UK, Australia, and many more. So he has also authored 5 books on business communication, soft skills, motivative yourself, human resource management, and path of happiness. So today he will deliver a lecture on institutional leadership. A very warm welcome, you sir. Very good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Thank you very much. Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, my PPT is visible. Yes, sir. It is visible. Okay, very nice. Very nice. Thank you. First of all, thank you very much, ma'am, for introducing me and giving me this platform to interact with around 100 plus participants present here from all over India. It's a great pleasure indeed. And I also appreciate Atal sponsored FDP on innovative technical education practices and academic leadership, organized by Shri Shankaracharya Technical Campus, Bhilai. I'm also grateful for the efforts made by Madam Dolly Shukla and her whole team in organizing this program. मंजिल उसी को मिलती है जिसके कदमों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. Once again, very, very good afternoon to one and all. Good afternoon. You can make this session interactive because you all are already into the field of academics and you're doing great things at your end. So you can interact anytime. This is in fact your program. We're going to talk on academic leadership. I'll try to make this session interactive, and I will also try to give many examples of leadership and academic leadership. So shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Good. See, your participation will make a big difference. So whenever you want to give some more examples or better example, or you would like to give your comments, or you would like to interact, I will welcome you for that. Glimpse of few of my programs before we start. Okay, institutional leadership. Now, we all understand leadership. This word in itself, leadership को अगर आप ध्यान से देखें तो leader और ship. Leader जो the one who leads from front, and ship the thing which takes place from one place to another place. So leader can take the organization from to the next level, and
we need to understand what is institutional leadership, because more or less we all are also leaders at our end. Now, leadership matters. Leadership can take the organization to the sky heights. There is no doubt in this, and that's why we are trying to understand more about leadership. Although you must have heard or listened or delivered also uh, talk on leadership, but definitely we will try to understand leadership from various perspectives. Leadership is basically creating paths. Followers never know how hard the leader tries to create path. There is no doubt in this. The one who is in the front understand the toughness, how to proceed further, and he has to face the heat also at the same time. Leadership is all breaking all records. Whatever, in fact, our own records, whatever we have achieved now, every year we have to touch benchmarks. Next level we have to go, and that is breaking all records. That is leadership. Leadership cannot be stagnant. एक बहता हुआ पानी और एक रुका हुआ पानी में बहुत फर्क है. बहता हुआ पानी एक जिंदगी है और रुका हुआ पानी एक मौत के समान है. तो लीडरशिप इज अ डायनेमिक वर्ड. लीडरशिप इज ड्राइविंग अहेड ऑफ अदर्स. जब लोग सोच रहे होते हैं तो लीडर्स उस काम को कर रहे होते हैं. एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड. In fact, it was used in corporates, very famous in corporates, but now it is famous everywhere. We need to have proactive approach and for whatever we are doing it, because हमें पहले ही भापना पड़ेगा कि क्या होने वाला है as a leader. जैसे there is example कि when Ford company ने इशू किया, जैसे ही वहां से गाड़ी निकलती थी तो they offered पूजा की थाली, because they knew that this car is going to go to the temple initially first. तो उन्होंने पहले ही पूजा की थाली दी. अब होता क्या था कि कार का जो प्राइस है वो इतना पॉइंट पिंच नहीं करता था जितना अच्छा लगता था कि पूजा की थाली कंपनी ने दी है. दैट वाज वेरी काइंड एंड गुड जेस्चर एंड वेरी प्रोएक्टिव अप्रोच के ऊपर एक एग्जांपल हम दे सकते हैं. जिस चीज का होना है उस चीज को पहले ही करना. नेक्स्ट इज लीडर्स नॉट इंस्ट्रक्टिंग पीपल. जनरली यहीं पर ही पीपल आर बैडली मिस्टेकन अबाउट लीडरशिप की. पोजीशन आ गया तो चलो इंस्ट्रक्शंस देते रहें और काम होता रहेगा. नो, लीडरशिप इज नॉट इंस्ट्रक्टिंग पीपल्स. लीडरशिप इज ऑल अबाउट इंस्पायरिंग पीपल. बिकॉज देखिए, एवरीबडी नीड्स इंस्पायरेशन. आप और हम भी क्यों ना हो, देयर वेरी फ्यू पीपल इन आवर लाइफ दोज हु इंस्पायर वी पीपल आल्सो. ज्यादातर लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं, दूसरों को डिस्करेज करते हैं. बहुत कम लोग आपने देखे होंगे, हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो हमें एनकरेज करते हैं. बिलीव मी, whenever we talk to those people, whenever we come across those people, we feel very good. Why? Because we understand they recognize us, they inspire us, whatever we are doing it. Leadership is definitely upgrading yourself. देखिए, things are after COVID, things are changing like anything. इतनी जल्दी चीजें, बिजनेस मॉडल्स बदल रहे हैं, थॉट प्रोसेस बदल रहा है. देखिए, चीजें बिल्कुल बदल रही हैं, लाइफ की डायमेंशन अलग हो गई है. अभी अर्लियर वी यूज्ड टू से कि वी हैव टू चेंज, बट नाउ दैट वाज स्टिल दैट वर्ड वाज ऑप्शनल, बट अभी ऑप्शन भी खत्म हो गया. सॉरी, वी हैव टू चेंज बाय ऑल मींस. आप आपके सामने है 2009 में जो शूटिंग के लिए कैसे एक व्यक्ति प्लेन पे या कैसे वो शूट कर रहा है एयरक्राफ्ट पे, और आप 2019 में इस चीज की जरूरत ही नहीं है. ड्रोन्स आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स नाउ. लीडरशिप इज शार्पनिंग द स्किल्स. Very well said. Day before yesterday, I was in a very big program which was on this bridging the skill gap to the national level program. वहां पर भी यही बात हो रही थी कि किसी वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा. That program was for basically for the students, but I told them that it's not for the students, it's for we people also. We also need to sharpen our skills from time to time to maintain, to sustain our position as a leader. So this is again
Sharpening the skills it's a continuous process. It's a part of leadership. Leadership cannot be static कि मुझे अब ये पोजीशन मिल गया, मुझे इतना आता है, मुझे अब आगे करने की जरूरत नहीं है. Leadership will never sustain in that situation. And believe me, I delivered a talk on ethical leadership in Indonesia, one of the conference in Indonesia on ethical leadership. Okay, ethics is again a very big topic and leadership is again a big topic. Ethical. Now people all over the world are not talking of leadership. They are talking of ethical leadership. Why they're talking of ethical leadership? Because they have observed that 90% companies come, they perform, they do well. After 8 to 10 years, they vanish. So where that leadership is gone? Leadership was there, but because of lack of ethics, that was not able to sustain. If we are talking of sustainable leadership, ethics is very, very important. That should be there. Now, ethical leadership is very, very important. And it should be there. If you want, that company should exist for 40, 50 years. And from time to time, sharpening of skills is again very, very important. And believe me, we all are doing at this point, we all are sharpening our skills only. Believe me, all of us are qualified, are on good positions. Still, we are attending this program. We might be knowing many things about leadership, but still we have a curiosity to know more about leadership from various perspectives. Every speaker has its own perspective and it has its own experience of life to explain certain things. Now, leadership matters. देखिए, we are a democratic country. In fact, we are actually democratic country. People say a lot about India. India is like this, not good. India is like this, India is like that. But believe me, there are so many countries where it's difficult to live. Maybe more advanced than India. India is a country of population of 140 crore. And approximately 120 countries, small countries of the world, can merge in one country like India. And we say India is not doing that good. See, India is emerging like anything. The leadership is very much in the safe hands. And if we are towards the positive direction, towards the right direction, I believe that very strong leadership is there. Because we are talking of leadership in the institution or in the university. Just imagine, and that is also not easy for every one of us. And just imagine to lead the country is not at all easy. So before we criticize, we need to think that India is a country where after every 50 kilometers, language and thought process changes. So here comes the role of leadership. India developed its own vaccines. It's a very big thing. Believe me, we are out, more or less, we are quite safe from this pandemic only because we had vaccination of our own. And it was really a very big thing. So India is, in fact, India is in itself is emerging as a leader country for the world. मैं आपको दो और एग्जांपल्स देता हूं लीडरशिप के. मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं, पर इससे पहले मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चाहूंगा आपसे कि आप बताइए कि लीडरशिप का इजराइल का क्या क्या एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं आपको. एनीबॉडी फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? Anybody from the participants? Our Prime Minister, Shri Narendra Modi, is one of the example. Yes, very true. Please tell your name before you say something. Ravi Mishra from Gwalior Polytechnic. Okay, very nice. Ravi ji, very nice, very nice.
Palliswamy from Tamil Nadu. Yes, Mr. Swami. Please Our tell. our cricket team, MS Dhoni. I admire as a good leader, no? Okay. Now, on this slide, what I mean to say, I want to give two examples of these two countries. Can you tell me which example I am trying to give you? देखिए, I'm giving you two examples, like Israel. Israel is a country, is a very strong country, we all know. और इजराइल की एक बड़ी खास बात है जो मैं आपको बता रहा हूं. Sorry. Israel is surrounded by all the countries who are against Israel. Israel is totally surrounded by all those countries which are not in favor of Israel. They keep on fighting with Israel, but Israel still exists, and these countries also know if they will say anything to Israel, they are going to get a very sharp response. So that is, उनकी लीडरशिप कितनी स्ट्रांग होगी इस कंट्री की. ये छोटा सा कंट्री जो बीच में चारों तरफ दुश्मन कंट्री से घिरा हुआ है, बट दे हैव देयर ओन डोमिनेंस. कितना उनका नेशनल इंटीग्रिटी होगी, कितने स्ट्रांग होंगे वो हर चीज के अंदर, कि nobody can imagine to conquer Israel. So here is again comes leadership. Next is Japan. In World War II, after World War II, Japan was shattered. देखिए, बहुत पुरानी बात नहीं है. It's not very old time. It's a few, like World War took place in 1939 to 1945. After that, again, now Japan is a very, very well-known country and very advanced country. How fast they have come back, हम कहते हैं bounce back. How fast they have done it. उनकी लोगों की सोच कितनी, इन कंट्रीज के लोगों की थॉट प्रोसेस, नेशनल इंटीग्रिटी और अपने देश के प्रति इनका जो है वो कितना स्ट्रांग है. आप ये देखिए, हाउ मच हार्ड वर्किंग दे माइट बी. दे आर सो स्ट्रांग कंट्रीज. एंड आफ्टर नोइंग दीज थिंग्स, so again we can give example of these two countries. Then comes leadership lesson from Chanakya. बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, और ये बात बहुत सही है. लीडर को ये हमेशा, लीडर शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, दूसरों की गलतियों से सीखें, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने से तुम्हारी आयु कम पड़ेगी. It means that we need to learn from the mistakes of others. One life will be very short if we keep on doing mistakes again and again by our own self. So this is a beautiful thing. We need to, in leadership lesson, we need to learn from our juniors also. We need to learn from anyone. That should be the approach of a leader, that whatever good thing or the idea coming from behind may be very good for us, which is good for us, which is good for all. We need to adopt that idea irrespective to that who has given that idea. Next is Lord Krishna, the true leader. I'll give few examples because I deliver a lot of talks on Mahabharata, Lord Krishna, Bhagavad Gita. मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स देना चाहूंगा. इस पे तो पूरा एक लेक्चर इनफैक्ट बनता है. लॉर्ड कृष्ण, द ट्रू लीडर, लीड बाय एग्जांपल. ही वाज द वन who came in front and became the सारथी of Arjuna. वो नहीं भी बनते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बट वो बने, उन्होंने भी कर्म किया, and it was egoless. The best thing was there was no ego as such. वो भी एक द्वारका के राजा थे, but he became सारथी of Arjuna in that. So that is lead by example. We just not to instruct others. In fact, we have to do sometime the things ourselves, so that others should also understand that if our senior is doing, we also need to do the same thing. Flexible approach is definitely should be there. One should not be rigid in anything. इनको जब इन्होंने कहा कि अभी कौरव नहीं मान रहे युद्ध से, तो मैं जाके उनको समझाने की कोशिश करता हूँ. He was very flexible. कहा कि let me try also. He was again a very good listener. There are 18 chapters in Bhagavad Gita. First chapter, Arjuna
was telling his situation to him, he listened throughout. And after that, he started speaking. So he was a very good listener also. Leader has to be a very good listener also. Patience. He was having lot of patience. Shishupal was his relative. He always used to abuse him. He told Shishupal, Shishupal, 100 after 100 time, I will not leave you. तुमने मुझे 100 बार तुम मुझे बुरा भला कहते हो, लेकिन 100 बार से ज्यादा जब तुम 100 बार कह दोगे मुझे बुरा भला, तब मैं तुम पे एक्शन लूंगा, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा. He was having a lot of patience. In fact, we take it on our own self. हमें कोई एक या दो बार कोई क्रिटिसाइज करे तो we get annoyed. Next is, he was a great performer also. ऐसा नहीं उन्होंने कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं कर सकते थे या उनको युद्ध करना नहीं आता था. He was a very good performer. जब उन्होंने देखा कि अर्जुन was not ready to fight with, अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था भीष्म पितामह से, और उसके बिना ये लड़ाई आगे चल नहीं सकती थी महाभारत की. तो he was provoking him to fight with Bhishma Pitama, which Arjuna was not doing. Then he said, he left Arjuna, he came in front. इन्होंने वो रथ का पहिया निकाला और खुद भीष्म पितामह पे अटैक करने लगे. जब अर्जुन ने उनको मना कर दिया कि आप मत लड़िए, आप अपना प्रण मत तोड़िए, मैं युद्ध करूंगा. So he was a great performer also at the same time. So he had all the qualities, although he used those qualities as and when. He didn't show that qualities. जब जरूरत पड़ी तब इन्होंने दिखाई वो सारी qualities. अगर इनकी लाइफ से हम सारी qualities निकालें तो हमें लगेगा कि इनसे बड़ा कोई लीडर पूरी दुनिया में आज तक हुआ ही नहीं है. तो we can learn a lot of leadership lessons from Lord Krishna also. ये भी एक perspective है leadership को समझने का. So जो मैं आपको इतने examples I'm trying to give in each slide, I'm trying to give a lot of examples to you. The only thing is कि leadership is not about reading or knowing about 10-20 statements. It is knowing from various perspectives. मैं जितने भी बात अब तक आपसे कर रहा हूं, मैं leadership के different angles से आपसे बात कर रहा हूं. Human potential की अगर हम बात करें, ह्यूमन पोटेंशियल की अगर हम बात करें, इंसान के अंदर, वी ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड. देयर इज नो सेकंड पर्सन लाइक अस इन दिस वर्ल्ड. पूरी दुनिया में हमारे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है. हम इतने सामर्थ्य हैं, इतना पोटेंशियल है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन लाइफ के अंदर, बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने जा रहा हूं जो हमें एज सच बिलीव ही नहीं होगा कि इन लोगों ने ये काम कर दिया है. और अगर ये लोग ये काम कर सकते, these people can do it, we can also do it. The good thing is that never ever underestimate human potential. इंसान ने, कहते हैं ना कि हम we're part of God. इतना पोटेंशियल है हमारे अंदर. what human beings can think, they can do it. इतनी पावर है, सोच में इतनी पावर है. मैं आपको एग्जांपल्स कुछ देने जा रहा हूं. फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ भक्ति शर्मा. शी इज अ स्विमर फ्रॉम राजस्थान, सेटल्ड इन मुंबई नाउ. शी इज द यंगेस्ट स्विमर हु क्रॉस्ड 7 seas ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया के 7 बड़े बड़े सी को इन्होंने पार करके दिखाया. जस्ट इमेजिन. इनसे पूछा कि आप लक्ष्य को कैसे देखते हो, पानी में तो कुछ नजर ही नहीं आता. तो कहती है मैं सिर्फ अपनी स्विमिंग पे फोकस करती हूँ. इन लोगों की जो एक एक शब्द बात सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं, इतना जबरदस्त इनका रहा है. मतलब आप इमेजिन कीजिए कि समुद्र को लांघना, सोच के भी हमें लगता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा. देन कम्स अरुणिमा सिन्हा. विद 1 leg she conquered Mount Everest. और इनका एक्सीडेंट हुआ. शी वॉज ए वेरी गुड प्लेयर. एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, ट्रेन में जा रही थी, कुछ बदमाशों ने अटैक कर दिया और ये इनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया, टांग कट गई. लोगों ने सोचा कि शी इज ऑलरेडी डेड और पूरी रात ये वहां पड़ी रही. नेक्स्ट डे ये हॉस्पिटल में ले गए, वहां कैसे भी करके इनकी जान बच गई. अब इन्होंने वहां ये सोचा कि मैं अब अपनी जिंदगी में ऐसा बड़ा काम करूंगी जो मैंने पहले नहीं सोचा था उस कंडीशन में. और उससे भी बड़ी बात है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज कि शी वेंट टू बिजेंद्री पाल. अरुणिमा सिन्हा वेंट टू बिजेंद्री पाल.
in this condition with one leg. She said ki madam, I've heard about you, I know about you, now I want to conquer Mount Everest. विजेंद्री पाल ने 3 बार इनको ऊपर से नीचे तक देखा और गले लगा लिया, बोले कि पगली, अगर तूने इस कंडीशन में सोच भी लिया ना माउंट एवरेस्ट पे फतेह पाने की, तो समझ ले तूने माउंट एवरेस्ट पे फतेह पाली. दैट वाज द आंसर ऑफ विजेंद्री पाल. How can you think in this condition? But that, here comes the human potential. Whatever you think in whatever condition, you're going to achieve it one day. Pipa Malik, she is paralytic. She cannot walk on her own. See the medals she is carrying. See the grace on her face. These are the legends. They are the live examples for you human beings. And when we talk of leadership, मैं कहता हूं इनसे ऊपर क्या लीडरशिप होगी जिसकी सोच इतनी जबरदस्त हो. तो सोच, the power is in your thoughts, in our thoughts. वो कितने पावरफुल है, वो हमको बड़े से बड़ा लीडर बनाएंगी. Here comes the Helen Keller, deaf and blind. She invented Braille. Just imagine, deaf and blind. जो व्यक्ति इस कंडीशन में हो और वो दुनिया को रास्ता दिखा दे, ऐसे लोग, these people never die. Next is Mr. Jadav Pyang. No, next is Dashrath Maji, the mountain man we can. Hello. Good afternoon. Yes, good afternoon. Good afternoon, Anjali. Good afternoon, Poonam. Good afternoon, Darshan. Okay, good afternoon. Please be silent. Dashrath Maji, mountain man. Just imagine, एक पत्थर तोड़ना हो तो we have to think so many times कि टूटेगा नहीं टूटेगा, तोड़े कि ना तोड़े. He was a man who broke the mountain. Mountain तोड़ दिया पूरा रास्ता निकालने के लिए, क्योंकि इनको वो माउंटेन इतना चुभ रहा था. इनके साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था. बिकॉज ऑफ दैट माउंटेन को घूम के जाना पड़ा था और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था. तो इनको ये माउंटेन ऐसा लग रहा था कि ये माउंटेन की वजह से ऐसा, इस माउंटेन को तोड़ना है. एक ठान लिया, बस एक चीज, सही है गलत है, नथिंग डूइंग, बस एक ठान लिया कि कुछ मुझे ये काम करना है. तब इन्हें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे. नेक्स्ट कम्स फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जिनको कहते हैं जादव बोले पियंग. 40 मिलियन ट्रीज प्लांट किए इन्होंने लास्ट मोर देन 30 इयर्स के अंदर. 40 मिलियन ट्रीज ऑल अलोन. इनको पद्मश्री भी मिला है अभी. सी द ह्यूमन, मतलब वी डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दीज पीपल. इनका माइंड, इनकी सोच, इनकी थॉट प्रोसेस कैसा होगा. नेक्स्ट इज माइकल फेल्प्स, गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स. इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है. ही वाज विनिंग गोल्ड मेडल वन आफ्टर द एवरी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतते थे. हर बड़े से बड़े टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतते थे. तो एक बार क्या हुआ कि ये जब स्विमिंग करके आखिर में पहुंचे तो इनका हाथ उस पर लग गया, जो पूल पे लग गया, कॉर्नर, पूल के कॉर्नर पे लग गया और इनको फ्रैक्चर हो गया. सो देन ही वेंट टू हिज डॉक्टर. इस डॉक्टर टोल्ड कि देखिए फ्रैक्चर तो ठीक हो जाएगा, पर इस हाथ में आपकी जान नहीं रहेगी. आप स्विमिंग कैसे करेंगे, आपके इस हाथ में तो इतना पकड़ेगा ही नहीं हाथ. इसमें it's not that strong as it was earlier. Now how you'll do it? Swimming, and it's not matter of swimming for you because you are Olympic champion. It's matter, आपके लिए तो seconds का मैटर है. तो अभी आप कैसे करेंगे. तो ये इनका सुनने वाली बात है. What he did, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो जो हो गया सो हो गया. इन्होंने क्या किया, he started empowering his legs. ये पैरों से ज्यादा शक्ति से, पैरों से पानी को धकेलने लग गए, पैरों को ज्यादा यूज करने लग गए. तो जो इनको लैप्स, इनके हाथों में ताकत से कम होने से हुआ, वो उससे ज्यादा ताकत इन्होंने पैरों में दे दी. एंड अगेन he started winning Olympic gold medals. See the strategies, see the thought process. जिसको कुछ करना होता है बड़ा, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, जिसका जुनून है, जिसको एक पैशन है, वो रास्ता ढूंढ लेता है. The best part is leader invents the way. उसको जो करना है उसको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. So that's the beauty of leadership
or I believe same leadership qualities we all also have. And by understanding all these examples of world-renowned people, we are also going to make big changes on our thought process and in our leadership styles. Now, here, अब मैं यहाँ पे आपको, you all are very well known to all these faces, but इनकी एक बड़ी जबरदस्त अपनी ही leadership थी जो मैं आपसे share करना चाहूँगा. I would like to share with you. I would like to interact with you on this styles of leadership. So shall we start? Shall we start? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now, you please tell me. We'll talk. First, we'll talk of Sarpalli Radhakrishnan. Anybody can tell me which type of leadership he possesses? Maybe he is democratic, sir. Good, good, good. देखिए, no answer will be wrong. Your participation is more important. Academician. Pardon, Ravi ji? Yes. Academician. Academic. Yes, yes. He was a very, very, very good academician. Very true, very true. Anybody else? See, we celebrate 5th September because of him. And see, academic leadership was the best thing in him. He gave a new dimension to academics. इन्होंने बहुत academics को, टीचिंग फ्रेटर्निटी को बहुत प्रमोट किया वेस्ट में और इंडिया में भी. इन्होंने बहुत प्रमोट किया एजुकेशन को. दैट्स व्हाई हम इनको याद करते हैं आज भी. और एकेडमिक लीडरशिप के अंदर ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. Yes. Anybody can tell what type of leadership he possessed? Autocratic. Pardon? Autocratic. Okay, okay. Autocratic. Okay. Tell me his one unique thing which he did. Liberated many states of India. Pardon? Liberated many states of India from. Yeah, he united many states. Very true. Ravi ji, very good participation from you. You please tell me from which college you are? Dr. B.R. Ambedkar Polytechnic, Gwalior. B.R. Ambedkar Technical College from? Gwalior. Gwalior. Okay, Ravi ji. Thank you very much. Nice talking to you. देखिए, one great thing Sardar Vallabhbhai Patel did was he joined 562 princely states of India. See the kind of collaborative thing he had in his mind. Clarity कि भाई सब लोग unite होंगे, then only we can be one. We can win. तो सबको साथ लेके चलना. It's see अगर हमें कहा जाएगी देखिए आप सबको साथ लेके चलिए. We have 50 faculties, 100 faculties. Sometimes it becomes difficult. But for him 562 princely states को unite करना. See the gravity of the things. कितना बड़ा काम इन्होंने किया है, कितना बड़ा काम किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. That's why we remember him. Next is Swami Vivekanand ji. Yeah, he is the symbol of youth, sir. Yes, youth icon. Very true, very true. What's your good name? Apalle Swami from Sengundra Engineering College, Tamil Nadu. Okay, from I which? believe he's a spiritual leader as well. Yes. Please tell your name, madam. Sir, my name is Gagandeep Pullar and I'm from Chandigarh Group of Colleges, Landra, Mohali. Okay, Gagandeep ma'am, very good answer. And this was, in fact, I also wanted to tell you the same thing, that Swami Vivekanand ji was a great spiritual leader. He promoted spirituality all over the world. He represented India. आज भी अगर spirituality की बात करते हैं, oneness की बात करते हैं, तो
ये स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है, और स्वामी विवेकानंद जी के बिना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अधूरा है, कि अगर वहां पर उनकी फोटो नहीं है या उनके बारे में बात नहीं होती. So that is a great leadership he possessed, and in fact he is one of the best example of spiritual leadership. Very good, very well said, Madam and Swami sir. Thank you very much. Next is Mother Teresa. Anybody would like to tell her leadership? Was she possessed any type of leadership? And if yes, then which was it? I think she has brought a lot of transformation in terms of spreading love and affection among people. So I believe that she could be called the model of love, and I don't know how could you put forward the leadership. Very true, but Devotional leader. pardon? Devo- Devotional leadership. Okay. So okay. she's a leader of content people. Excuse me. He We have promoted peace yeah. peace. and Yes. help people to come out of the loneliness. Yes. Dr. Devani, you are from which place? I am from Sri Shankaracharya Technical Campus. Okay. Bilay. Okay. Now we are 100 participants here, but I feel that 3-4 are participating. Rest, they are on mute mode, or they are listening, or what type of matlab, they should also, as a leader, they should also participate. You all should participate as a leader. Don't worry about right or wrong. We are not going to have any test after this session. Your thoughts, sharing of thoughts is more important. And I appreciate those who are participating. They're listening very carefully. See, Mother Teresa possessed servant leadership. Das ka das. She never treated her as anything special or extra or senior. She had only one thing, that as a servant she has to serve. That's all. मैं इस दुनिया में आई हूं, मुझे गरीबों की भला करना है, उनका उत्थान करना है और उनके लिए काम करना है, बस दैट्स ऑल. ये तो उन्होंने अपनी लाइफ में शी रीच टू द पॉइंट ऑफ एक्सेलेंस एंड शी गॉट दिस उपाधि ऑफ मदर टेरेसा. She never wanted, she never expected anything, but she was so devoted. Devotional leadership was again one of the very good answer. That was again, we can say, the devotional leadership. She was so devoted in her work. काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता. We have to have devotion for that work. We have to have love for that work. Now these people set examples. अगर आज हम इन एग्जाम्पल्स को नहीं समझेंगे तो हाउ वी आर गोइंग टू टेल टू अवर स्टूडेंट्स. अगर हमारे दिमाग में नहीं एग्जाम्पल बैठेगा सेट, तो हम स्टूडेंट्स को कभी भी नहीं बता पाएंगे. एंड वी टॉक ऑफ लीडरशिप. इससे बड़ा लीडरशिप क्या हो सकती है? नेक्स्ट इज महात्मा गांधी. यस, एनीबडी कैन टेल मी? सॉरी, सतीश धवन, मिस्टर सतीश धवन. यस, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? Can you please tell who is he? Yeah, he's a scientific Yes, leader, yes, sir. yes. So he is a scientific leader. Scientific leader. Okay, very good, very good. Can we know who is he, please? Because Satish we don't Dhawan. know. Yeah, matlab, he is into what? He was an advisor to Prime Minister once. So I actually, think it's a he was scientific. He's involved a with atomic energy, and ISRO is his brainchild. Okay. Neha ma'am, you are from which place? I am from New Delhi, Jamia Which Hamdard. college? Jamia Which Hamdard. Pardon? Jamia Hamdard. Okay, Jamia Ahmedabad College से आप बोल रहे हैं. Very nice, very nice. So he's a famous person for satellite launching yes, satellites. don't worry. I'll tell you. He was the chairman of ISRO, and he was again, he possessed great leadership qualities. इनका क्या था? Dr. APJ Abdul Kalam used to work with him, under him as a junior over there, as junior scientist over there. जब चीजें देखिए, जब सैटेलाइट wrong direction में चला गया, नहीं successful, it was not successful, they had a press conference, and the main in charge of that satellite was Dr. APJ Abdul Kalam. He took along with him, and Dr. APJ Abdul Kalam was very, very afraid कि अभी मैं क्या जवाब दूंगा. It is very difficult for me to face media and all these things. So जब वहाँ Mr. Satish Dhawan was present there as a chairman, he took all the responsibilities on his own.
उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम पूरे टीम के एफर्ट्स थे, लेकिन इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं लेता हूँ, बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और जब ये चीज कामयाब हो गई, नेक्स्ट टाइम ये कामयाब हो गए, तो इन्होंने फिर अगेन एपीजे अब्दुल कलाम जी को वैसे ही ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, और इन्होंने सारा क्रेडिट इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के दिया कि ये इन्होंने सारा ये मैनेज किया, इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट सक्सेस। सो लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है जो यहाँ पर मैंने इसीलिए इस एग्जांपल को भी लिया, ऑल्दो आप कई लोगों को नहीं पता था मिस्टर सतीश धवन का, आई टुक दिस एग्जांपल बिकॉज जो गिविंग क्रेडिट की जो टेंडेंसी है टू अदर्स, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ज्यादातर लोग क्रेडिट, क्या झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग जो ट्रू लीडर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आपकी वजह से तो मुझे ये मिला, तो ये क्रेडिट मेरा थोड़ी, तो आपकी वजह, आपको मिलना चाहिए इसका क्रेडिट। तो ये पहचान होती है ट्रू लीडरशिप की कि आप दूसरों को क्रेडिट देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर आप चुरा रहे हैं क्रेडिट, तो आप तो कहीं ना कहीं पे, मतलब हम कहीं ना कहीं पर ट्रू लीडर नहीं है। वो कहते हैं ना कि लीडर बाय डिफॉल्ट बन चुके हैं, और वो लीडरशिप एग्जिस्ट नहीं करती, वो थोड़े टाइम तक रहेगी। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी, इनकी क्या लीडरशिप थी, वी ऑल नो दिस, मतलब इनको हम सब लोग जानते हैं। Sir, he was a political and spiritual leader. He's Transformational. देखिए मैं जो इसका एग्जांपल दूंगा, इट विल बी डिफरेंट, आप कोशिश करिए। Sir, political and spiritual leader. Good try. Anything else? Transformational. शोभी सनी मैम, आप कहाँ से हैं मैम? I'm from Cochin, sir. कोचीन। Yes. Okay. Good try ma'am, very nice participation, very nice, good. Anybody else? देखिए, the best, we know a lot of things about महात्मा गांधी जी, but the best part was, मुझे जो इनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि देखिए इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए देश को आजाद कराने में। जो मुझे बहुत जब भी मैं सोचता हूँ मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो बात, एंड दैट थिंग इज कि इन्होंने विदाउट आर्म्स एंड एमिनेशन ये इंडिया के लोगों को एक सोच दी, एक विजन दिया कि आप लोग अंग्रेजों से आजाद हो सकते हो, बिना लड़ाई किए भी आजाद हो सकते हो। ये एक सोचना भी अपने आप में उस समय बहुत बड़ी बात थी। ये सोच जो थी ना इनकी, that I believe that thought process made him father of the nation. सोच इंसान की इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो इंसान कहेगी ये हो नहीं सकता, और ये कह रहे हैं कि ये देखो आप ये कर सकते हो। एक आम व्यक्ति कह रहा है कि ये तो हो नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, और एक व्यक्ति कह रहा है कि आप मेरा साथ दो, हम करके दिखाते हैं, and that happened. And he is the best example of visionary leadership. Next is APJ Abdul Kalam ji. इनके बारे में क्या जानते हैं आप? So I believe he himself was not a leader as such, a very great person, no doubt, but his life itself is an example of good leadership, because he's learned a lot from people. So I गगनदीप believe. मैडम बोल रहे हैं ना? हाँ जी सर। हाँ गगनदीप मैडम, आप देखिए जो भी ग्रेट व्यक्ति होगा वो लीडर होगा, एक बात आप मान के चलिए, Okay. है ना? अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनकी ये मैं जो लीडरशिप की क्वालिटी बताने जा रहा हूँ, it's a motivation, sir. His life is a motivation for people. So that way we can call him a motivational leader also. आप बिल्कुल ठीक है, He can be a research leader also, sir. He's आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं अब आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। हम इनको रिसर्च के एंगल से देखते हैं, हम इनको डिफरेंट एंगल से, प्रेसिडेंट के एंगल से। अब मैं जो इनके बारे में बात बताने जा रहा हूँ वो ध्यान सुनिएगा। जब ये अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, इनके एक एम्प्लॉय आए, बोले कि सर आज, ये लोग कैंपस में ही रहते थे, तो इनके एक एम्प्लॉय आए, बोले सर आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना रहेगा, मेरे घर पे मेरे बेटे का बर्थडे है, तो सेलिब्रेशन थोड़ा रहेगा, तो अभी आज मुझे छुट्टी चाहिए होगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाइएगा। तो ये 5 बजे के आसपास जब अपने ऑफिस से रोम अराउंड, जस्ट ही वाज रोमिंग अराउंड, ही सॉ दैट पर्सन वाज सिटिंग एंड वर्किंग। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो सुबह मेरे से छुट्टी ली है, इनके तो बेटे का बर्थडे है, तो ये बैठे क्यों है? तो ये समझ गए कि भाई, और ये व्हाट ही डिड, he went to his place in the campus and he attended the function and then he came back.
और वो व्यक्ति अपने आप नॉर्मल अपनी अपना जब ऑफिस ऑफ होने के बाद जब घर गए तो उन्हें एक्चुअली उनको भूल गया था, उनको याद ही नहीं रहा कि मुझे तो आज जल्दी जाना है। वो गए तो उन्होंने देखा कि फंक्शन चल रहा है और एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी एंड दे टोल्ड कि सर केम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम केम एंड ही अटेंडेड दिस फंक्शन एट दैट मोमेंट। तो वो तो बहुत हैरान हुए, बहुत खुश हुए कि सर कैसे आ गए भाई, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। उनको याद था कि भाई ये फंक्शन इतने बजे शुरू होना है, या हमारे घर पे फंक्शन है। सो he was a man who used to take care of his people। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। देखिए लीडरशिप में आप अपने आप को प्रिजर्व करते हैं या आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज नॉट लीडरशिप। लीडरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर पीपल। आप आपके लोग हैं, आपके लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं, आपकी फैकल्टीज हैं, आपके लिए वो, आज अगर आप डायरेक्टर हैं, एचओडी हैं, तो आपके लिए वो लोग इतना काम कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट में वो इतना काम कर रहे हैं। तो आप जब अपने से ज्यादा उनका ध्यान रखोगे ना, ऑटोमेटिकली आप तो उनका ध्यान रख रहे हो, वो सब लोग आपका ध्यान रखेंगे। इट इज वाइस वर्सा। दैट इज लीडरशिप, दैट इज लीडरशिप। हमें समझना होगा एक्चुअली कि व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट इज एक्चुअल लीडरशिप। अब मैं आपको जो एग्जांपल्स दे रहा हूं, लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूं, रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूं। एंड लास्ट एग्जांपल, माय लास्ट एग्जांपल इज ऑफ, ये कौन है, हु इज ही? Nelson Mandela, sir. He's नेल्सन Nelson मंडेला Mandela. के बारे में, लीडरशिप के बारे में क्या जानते हैं आप? Sir, he was an anti-apartheid leader. He worked in South Africa for Leader the of the trade. Leader He of the said trade. Leader of grade. yes, leader of the trade। anti-apartheid, sir. Anti-apartheid leader. He was Very true, very revolutionary true, leader. very true, very true, very true। What else? Anybody else? Sir, he was Persistence. yes. Kabir ji, you are from which place? I am from Cochin, sir. Okay, very good participation from Cochin, very nice। Sir, he Yes, is Kabir ji, the you give your answer। he is the leader against racism. Yes, true। But I'll That give you policy is another, the same what I we will wrote give in you the another report dimension last of time. Mr. Yes, Nelson sir, Mandela అదే too। కదా. Yes, madam, you are from which place? Velangini, madam। Yes, madam। See, sorry। Now you see, Nelson Mandela became president of South Africa. He was in jail. He was in jail for 27 years in jail before that. 27 years he was in jail, and he was offered several times. He was offered that we will take care of you. You don't worry, but you don't represent what you are representing. You don't represent. Rest we will take care. You can come out. We want you to come out. He didn't అంటే agree. ఏఐసిటి 93,000 లో 15,000 కాలేజ్ యూటిలైజ్ చేసుకున్నందుకు He didn't ఇచ్చారనమాట. agree to it. Please mute కంపెనీ your సెక్రటరీ mic. అంటే అది అంతే. Hello, He didn't somebody is agree. talking. Yes, please. Sorry, so somebody is talking. Can you mute them? Please mute your mic. See, ఓయూ he 27 years he did. ఇన్విజిలేటర్స్ కే ఇస్తారు. ఇన్విజిలేటర్స్ కి పేపర్ కి, ఆ పేపర్ కి కూడా ఎంత ఇస్తారు? 50 పైసలు. Vilangini madam, please mute your mic. Okay, now 27 years he was in jail. He was offered to come out. They were ready to take care of him, but he didn't agree. And this is the best example of ethical leadership. He stood by his cause. Best example of ethical leadership of Mr. Nelson Mandela. The few examples of these great personalities which I wanted to give you from different perspectives and different leadership styles. Next is, yes, terrorist attack we all know. Again, terrorist attack was there, a lot of people were killed, but the people inside, they did a tremendous job. They saved thousands of their customers. और बाद में जब रतन टाटा जो लोग जिनकी डेथ हो गई इसके अंदर, उनके घर गए तो they were very happy in fact, or he took care of all those people, and he represented like they were the real heroes of this organization.
उनको एज ए हीरो का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और जो लोगों की डेथ हुई वो उसमें ये उन्होंने पाया, देयर इज अ केस स्टडी आल्सो ऑन दिस, उन्होंने पाया कि वो लोग बहुत बड़े बड़े सिटीज शहरों से नहीं थे, वो लोग छोटे शहरों से थे। उनके अंदर प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, अतिथि देवो भव की भावना डाली गई थी, और वो दे मतलब वो अपनी जान पर भी खेल के उन लोगों ने बहुत लोगों को बचाया। वो भाग सकते थे, उनको रास्ता पता था दिस 5 स्टार होटल का, बट दे डिडंट वेंट फ्रॉम देयर। और ये बहुत एक बड़ा एग्जाम्पल है कि जब जब वैल्यूज और एथिक्स हमारे लोगों में होता है तो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। नेक्स्ट इज एम और गोल्स। जो लीडर्स जनरली फोकस ऑन देयर गोल्स, नॉट ऑब्स्टेकल्स। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। We should have, as a leader, we should have our goals, where we have to take the organization, how we have to take our organization. Our focus should be on our goals rather than on the obstacles. होता क्या है कि obstacles पे discussions चलते रहते हैं, negative talks पे बात होती रहती है, क्या करना चाहिए उस पे बहुत कम बात होती है। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया, उसने ये गलती कर दी, उसकी वजह से हो गया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, हमारा इंस्टीट्यूशन ऐसा है, हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है, हमारी यूनिवर्सिटी में ये कमी है। वी आर नॉट देयर टू फाइंड ऑब्स्टेकल्स और क्रिटिसाइज दैट प्लेस वेयर वी आर वर्किंग। इफ that place is no good, one should not stay there for a long time, or one should leave that place. We are with the organization, bread and butter is coming from that organization, we should think about that organization. Loyalty is very important. Integrity is very important. The basic qualities of a leader. Next is focus on your goals. जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। Yes, focus. Where I have to be after 6 months. How we have to achieve the admission targets. How we have to achieve the academic targets. How we have to achieve our placement targets. Focus should be on the goals rather than focusing here and there, what others are doing, what other that university is doing, how they're doing. We have our own, we should have our own style of functioning. We have our own in and outs. जहां हम काम करते हैं, now I am sitting approximately 210 kilometers from IIM Ahmedabad. I cannot do what IIM Ahmedabad people are doing. I cannot do over here. Same things. Although I am sitting very near to IIM Ahmedabad, I should have my own strategy. Seeing the region, there are so many factors which I need to take care while sitting over here. I'll give you a beautiful example. एक बार एक व्यक्ति बस स्टैंड पे उतरता है, उसको साईं बाबा, मुंबई में उसको साईं बाबा के मंदिर में जाना होता है, और वहां से 4-5 किलोमीटर दूरी पे वो मंदिर होता है। वो ही कॉल्ड टैक्सी कैब ड्राइवर, बोले कि भैया इधर आओ, मंदिर जाना है मुझे वहां पर, और ये मेरा सामान है, तो मैं कितने पैसे तुम लोग। उसने बोला कि मैं आपसे 500 रुपए लूंगा, 500 रुपीज आई चार्ज टू रीच ओवर देयर। वो कहते नहीं 500 इज टू मच, मैं पैदल ही चला जाता हूँ। ही स्टार्टेड वॉकिंग, एंड आफ्टर सम टाइम अगेन दैट रिक्शा पुलर, that auto rickshaw came and same this guy called him again. देखिए अब मैं काफी रास्ता तो मैंने तय कर लिया, अब तुम मुझसे कितने पैसे लोगे, how much you will charge from me right now? He said कि now I'll charge from you 650 rupees. He said कि you were telling me you will charge 500 rupees. Now I have covered such many of the kilometers, now you're saying you will charge 650 rupees. कहता है साहब आपको पता नहीं है कि आप दूसरी दिशा में चल रहे हो। So if we are not focused on our goals, there's a possibility that we are going far away from our goals. In Mahabharata, Lord Krishna told Arjun कि अर्जुन सिर्फ इस पृथ्वी और आकाश में तुम्हें एक ही चीज नजर आनी चाहिए, और वो चीज होनी चाहिए तुम्हारा लक्ष्य। लक्ष्य नहीं जिनका, वो ऐसे खो जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। टीम बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक विश्वास है, ये एक सोच है टीम बिल्डिंग, कि मेरे को आई हैव टू बी ईगोलेस, आई हैव टू वर्क विद ऑल,
everybody's having good qualities, everybody's having unique qualities. I have to take care of everyone. I have to take along everyone with me. That is the approach. एक approach है टीम बिल्डिंग, एक सोच है. ईगो हमारी ईगो आ जाती है. यस, आई एम द डायरेक्टर, आई एम द डीन ओवर हियर, आई एम द एचओडी ओवर हियर. टैग्स, हम टैग्स लेके चलते हैं, टैग्स लेके जीते हैं. ये सारी जिंदगी, मरने के टाइम में भी मैं ये था, मैं वो था. Positions are nothing. It's our work which speaks. Position तो हम अपने आप को कुछ भी दे दें. We open office and बाहर लिख देते हैं डायरेक्टर जनरल, लिख लेते हैं बाहर. क्या दिक्कत है? तो टीम के में काम करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप गेम जीतना चाहते हो तो आप अकेले काम करिए. अगर आप चैंपियनशिप जीतना चाहते हो तो आप टीम में काम करिए. But to win the championship, work in team. That's the beauty of team working. आपके ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, everybody is equally important, including fourth class also, including PN also. Believe me, अगर एक डायरेक्टर डीन के ऑफिस का असिस्टेंट नहीं आता, सारा ऑफिस हिल जाता है. See the importance of that person. Believe in teamwork. जिस दिन आपने टीम में काम करना शुरू कर दिया, और उस दिन आप देखिएगा कि यू विल टच नेक्स्ट लेवल, यू विल टच हाइट्स. और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको करना होगा, दैट इज यू हैव टू कीप योर ईगो साइड. झुकते हैं वो लोग जिनमें जान है, वरना अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान है. बस इतनी सी बात समुद्र को खल गई. बस इतनी सी बात समुद्र को खल गई कि एक छोटी सी नाव मुझ पे कैसे चल गई. सो ईगोलेस होंगे तभी आप टीम में बिलीव करेंगे. ईगो इज द बिगेस्ट हैसल. मैं, I am this, I am that. Who can give me advice? You work. It's not you work. It's we have to work together to get something, to do something big. Individual wins the game, team wins the championship. ये एक स्लोगन है जो मैं हमेशा अपने ऑफिस में अपने सामने रखता हूं. Because कभी ऐसा ना हो कि मुझे भी ऐसा लगे कि I am the only one. And I make sure whatever big thing, whatever good thing is we are achieving from time to time, that is only because of my team. I recognize, I appreciate, and I understand this thing from the core of my heart, that whatever I am getting, I am achieving, I am proceeding in my life, that is only because of the best wishes of my people, my team. Nobody is unwanted in the team. Sometimes you may not even know who is the most important person in your team. हर व्यक्ति की एक इंपॉर्टेंस है. देखिए, जैसे 11 प्लेयर्स आर देयर इन द मैच, तो कब कौन सा चल जाए नोबडी नोज. कई बार हमें 11th प्लेयर पे इतना भरोसा करना पड़ता है कि भैया ये मैच ही जिता सकता है आज. वो चाहे बॉलर हो सकता है, वो चाहे लास्ट में जाके 6 मार सकता है. सो ऐसा नहीं है कि कभी, देखिए मैं अपनी टीम से भी कई बार कहता हूं कि देखिए आज किसने जबरदस्त गेम खेली. कभी हम एवरीडे वी आर नॉट ए परफॉर्मर. ठीक है, समटाइम्स अवर few team members do very good, sometimes our other few team members do very good, and this way the things move, and that's the beauty कि कब कौन सा प्लेयर चल जाए, nobody knows. Everybody should be ready to perform, that's all. प्रॉब्लम कहां आती? प्रॉब्लम आती मी में. एम में प्रॉब्लम है, एम को उल्टा कर दो, दैट्स वी. सॉल्यूशन मिलेगा आपको. वी हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड. जब हम वी की अप्रोच से काम करते हैं तब सॉल्यूशन मिलते हैं हमको, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता है. जब हम मी के अप्रोच से काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं. वी डिस्कस प्रॉब्लम्स, and we are not here to discuss problems, we are here to discuss solutions. Ubuntu culture, this is African culture. एक बार एक व्यक्ति आया, उसने इन बच्चों को बोला कि बेटे तुम वहां से वहां तक दौड़ के आओगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा मैं उसको प्राइज दूंगा. ठीक है, बहुत खुश हुए सारे बच्चे और सारे दौड़ने लग गए. और देखा कैसे दौड़ रहे थे, सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ के दौड़ रहे थे. हाथ पकड़ के दौड़े, हाथ पकड़ के उसको टच किया, हाथ सारे पकड़ के इकट्ठे आ गए. बोले ये क्या किया तुमने, अब मैं किसको प्राइज दूं? तुम तो सारे इकट्ठे भागे और इकट्ठे आए, तुम वापस भी इकट्ठे आए. तो इन्होंने बोला बच्चों ने कि आई एम बिकॉज ऑफ वी. मैं हूं सबकी वजह से मैं हूं. हम तो ऐसे सोच ही नहीं सकते कि 3 लोगों को प्राइज मिले और बाकियों को ना मिले.
हम ये इनकी सोच है, एक फिलॉसफी है अफ्रीकन कल्चर की, जो देखिए कुछ भी अच्छी चीज कहीं से मिले उसको अडॉप्ट करनी चाहिए। दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप की अपनी कोई डेफिनेशन, कोई डायमेंशन नहीं है। आई डिलीवर सो मेनी लीडरशिप टॉक्स इन द कॉर्पोरेट्स। जोस मरीनो, चेल्सिया के, ही वाज द फर्स्ट, इनिशियली स्टार्टेड विद चेल्सिया सॉकर क्लब से, इसके ये कोच थे। ये उसको वर्ल्ड कप जिता देते थे हर बार चेल्सिया को। लोगों ने कहा ये तो जोस साहब तो भाई साहब ऐसा है कि ये तो इनकी टीम बड़ी अच्छी इनको मिल गई, इनकी किस्मत बड़ी तेज है, इनकी टीम इनको इतनी अच्छी मिल गई, टीम जीत जाती है, इनका नाम हो जाता है। तो कुछ समय बाद इन्होंने कहा कि अभी इटली ने बड़ा अच्छा ऑफर किया, देखा कि ये तो बड़ी अच्छी टीम है और ये मिस्टर जोस तो बहुत अच्छे, ये तो बेस्ट कोच है सॉकर के। इनको इटली ने तोड़ लिया, इटली ने इनको ज्यादा पैसे दिए और ज्यादा अच्छा ऑफर किया, ये इटली में चले गए। अब इटली नंबर 1 आने लग गई। इटली स्टार्टेड बिकेम नंबर 1, इटली स्टार्टेड विनिंग वर्ल्ड कप्स। फिर ऐसे स्पेनिश ने इनको लिया तो स्पेनिश नंबर 1 आने लग गई। स्पेनिश सॉकर क्लब जो था वो वर्ल्ड चैंपियन बनने लग गया। फिर लोगों ने रियलाइज किया नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कि भैया टीम में प्लेयर ऐसे हैं। फिर उन्होंने जोश साहब से पूछा कि आप भाई साहब करते क्या हैं आप वर्ल्ड के बेस्ट कोच बन चुके हैं सॉकर के, यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज बेस्ट कोच ऑफ दिस गेम। Then he told कि ये कुछ नहीं करते, ये टीम तैयार करते हैं, टीम। मैंने कहा ना, चैंपियनशिप जीतनी है तो टीम में विश्वास करिए, अपने लोगों को प्रमोट करिए, उनको आगे लेके आइए, उनको ग्रूम करिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए, उनको आगे आने का मौका दीजिए, उनकी मेंटरिंग करिए, देन यू विल फील द डिफरेंस। कॉन्फिडेंस, लीडरशिप इज दैट, लीडरशिप से कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सलमान खान से पूछा कि भाईजान आपकी पिक्चर जब भी रिलीज होती है तो उस दिन छुट्टी हो जाती है, आप उसी दिन चूज करते हैं जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, उसी दिन आप पिक्चर रिलीज करने की सोचते हैं? सलमान ने कहा बिल्कुल सही, सही कहा आपने, बिल्कुल हम ऐसा ही करते हैं। तो रजनीकांत से जब ये बात पूछी गई तो रजनीकांत ने बोला है कि सर आपकी जब पिक्चर रिलीज होती है तो उस दिन छुट्टी नहीं होती। तो रजनीकांत ने बोला कि यस, बिल्कुल सही कहा आपने, उस दिन छुट्टी नहीं होती क्योंकि हमें विश्वास है, हमें कॉन्फिडेंस है कि जिस दिन हमारी पिक्चर रिलीज होगी उस दिन खुद ब खुद छुट्टी हो जाएगी। दैट इज द कॉन्फिडेंस। आई कैन डू इट। आप 10 बार बोलिए ये चीज, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आप देखिए कि आपके अंदर एक ताकत आ रही है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके अंदर एक आपकी सोच बदल रही है कि मैं कर जाऊंगा, कर सकता हूं मैं। I can do it, I can do it. See, these are the empowering words which we should use for ourselves and for our team also at the same time. I'll show you a beautiful video at the same time right now. Is it firm enough? Yes, it is. He had the hat off before it dropped, Gary. See the level of confidence. ये होता है confidence. Sir, the video is not played. Video is not played. Okay, I'll play it again. No issues. Sir, you need to share that again. Sir, it's not yet. Is it firm enough? Yes, it is. He had the hat off before it dropped, Gary. You saw the video? Yes, sir. Yes, sir. I Yes, could sir. understand. Yes, sir. Very nice, very nice, very nice. So that is the confidence and that one should have as a leader. Next is now in the age of 79 he's working minimum 12 to 15 hours. What is the need? My question to you is, what is the need of, why is working so hard in this age? For self-satisfaction.
Okay, okay, okay. For keeping his mental faculties alive. Very nice. Very good. Very good. Very nice. Any other answer? To leave a legacy behind. Yes, yes, yes. He is happy what he is doing. Yes, very true. You see, he is Ankit ji. You are from which place? Sir, from Dehradun. Okay, okay. Which college? Sir, Tulaz Institute. Okay, good, good. Mr. Ankit, very nice participation. See, the point here is he is a legend, and he is whatever he do it to the level of par excellence. इनसे में ये चीज सीखने की जरूरत है कि जो भी काम करो उसको par excellence पे लेके जाओ. और he is a live example of this thing. कुछ भी मतलब चाहे मेहनत करना हो, चाहे परफॉर्म करना हो, irrespective of the age. Whatever he has done, he has proved. मतलब ये इतनी क्या कहते हैं, words will be less to explain him as such, but he is such an inspiring personality. आप देखिएगा, whatever he is doing it, he is so focused. कभी इनको आप किसी की क्रिटिसिज्म करते नहीं पाएंगे. ये और इतने शांत है, हर बार इनके माइंड में होता है इस लेवल के बाद अब मुझे नेक्स्ट लेवल अचीव करना है. और इस एज में भी इज वर्किंग सो हार्ड. आप देखिए ये चीज हमारे लिए कितनी इंस्पायरिंग है. हमारी इतनी एज नहीं है, काफी कम है, इनसे एज काफी कम है, लेकिन क्या हम इतना भी कर पा रहे हैं? सिर्फ सेटिस्फेक्शन या पैसे की बात तो है ही नहीं इनके केस में. लेकिन इज ए ट्रू लेजेंड, इज ए ट्रू लीडर इन वॉट एवर फील्ड इन द इंडस्ट्री ऑफ बॉलीवुड. ट्रू लीडरशिप का एग्जाम्पल है इनका, ट्रू लीडरशिप. नेक्स्ट इज बी ईगोलेस. वो मैंने आपको बताया, ईगो इज लाइक ए टर्माइट. बस इतनी सी बात समुद्र को खल गई कि कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई. रतन टाटा was honored by Mr. Narayan Murthy, and see the humbleness of the Mr. Narayan Murthy. Ratan Tata is senior to him in age, और उनके पैर छुए इन्होंने पहले. इतनी ग्रेट पर्सनैलिटीज, बिलियनियर पीपल, लेजेंड्स जिनका नाम है. सी द हम्बलनेस. और जरा सी पावर आ जाती है किसी के अंदर, बिलीव मी, जरा सी पावर आ जाती है उसके अंदर, इतनी ईगो आ जाती है, इतने ईगो आ जाती है, हम्बलनेस बहुत दूर चली जाती है. ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं. देखिए, इफ ए पर्सन इज नॉट हम्बल ना, इफ ही इज फुल ऑफ ईगो, देन ऑल द लीडरशिप क्वालिटीज विल गो इन वे. सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा. कितना लीडरशिप आप, कितना आप कोशिश करते हैं, वो सस्टेनेबल नहीं होगा. वो किसी ने बना दिया, उसका मिसयूज हुआ, यूज हुआ, कुछ टाइम बाद वो खत्म हो गया, दैट्स ऑल. वो ऐसी लीडरशिप नहीं चाहिए. आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लेजेंडरी लीडरशिप चाहिए, एग्जाम्पलरी लीडरशिप चाहिए, बिकॉज हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हर ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप लीड कर रहे हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अंडर यू, दोज आर लुकिंग एट यू. आपके वो हर स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं. आपके लिए, आप उनके लिए रोल मॉडल हैं. आप जो बात करते हैं वो उसको फॉलो करते हैं. कहीं ना कहीं पर आप, हो सकता है आप सोचते हो कि आई एम नॉट ए लीडर, बट पीपल आर फॉलोइंग यू. यू हैव बिग नंबर ऑफ फॉलोअर्स. यू आर ए पोजिशन वेयर यू हैव टू हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. भगवान ने आपको ऐसा मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को जिंदगी को शेप करने का. ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत कम लोगों को मिलती है. वी ऑल आर वेरी वेरी लकी पीपल, बिलीव मी. और लेकिन अगर हमें दिल से करना है, जो भी काम करना है दिल से करना है. देखिए, माइंडसेट को आप चेंज कर दीजिए. पुराने माइंडसेट से चीजें अब वैसे भी पोस्ट कोविड नहीं चलने वाली हैं. सभी चीजें बदल रही हैं और बहुत फास्ट पेस से बदल रही हैं. कोई सोच सकता है कि एक जो व्यक्ति बैंकॉक में वेटर था, ही बिकेम द हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री. ही हैज सो मेनी थिंग्स ही हैज रीडिजाइंड. 30 डेज में पिक्चर निकालना, रात को 9 बजे सो जाना, 3 बजे उठकर अपने काम पे लग जाना. कितनी चीजें हैं जो आज का यूथ इनसे सीख सकता है. रजनीकांत, बिकॉज ही वॉज ए बस कंडक्टर, भगवान मानते हैं साउथ में इनको लोग. MS धोनी, कैप्टन कूल, कितना भी 40,000 लोग हूट कर रहे हैं, फिर भी ही सो काम, इन्हें कोई मतलब नहीं. ही सो फोकस्ड. ही वॉज टिकट कलेक्टर.
इन रेलवेज, मैरी कॉम, लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, आफ्टर मैरिज तो गर्ल्स कुछ कर ही नहीं सकती है, नॉट पॉसिबल, बियॉन्ड इमेजिनेशन. He won so many awards after marriage. Mary Com. Just see the people, achievements of the people beyond the thought process. PQ is very important. Passion quotient is very, very important. पैशन होना बहुत जरूरी है. अगर आपका जुनून आपको कुछ करने के लिए कहे तो उसे सुनो, क्योंकि उसी में आपकी कामयाबी छुपी हो सकती है. Nothing great can be achieved विदाउट एंथुजियाज्म. जोश कहां है, हमारा जुनून कहां है? देखिए बहुत सारे प्रोफेसर टीचर्स क्लास में जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत थके हुए हैं, चेहरे पे मुस्कान नहीं है. कहां से जोश? अरे ये आपका जोश तो स्टूडेंट्स में ट्रांसफर होने वाला है. अगर हमारे में जोश नहीं है तो कहां से स्टूडेंट हमारे को फॉलो कर लेंगे, कहां से हमें वो हमारी क्लास उनको अच्छी लग जाएगी. चट्टानों को चटका दे रवानी उसको कहते हैं, जो दिल पे नक्श हो जाए कहानी उसको कहते हैं. नहीं मालूम तुमको करिश्मा किसको कहते हैं, हिला दे जो हिमालय को जवानी जोश उसको कहते हैं. दैट इज पैशन, दैट इज जुनून, लग्न, निष्ठा, कुछ कर दिखाने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए. बिलीव मी, यू आर रोल मॉडल्स ऑफ फॉर सो मेनी पीपल. यू आर लीडरशिप का कोई टैग नहीं चाहिए कि आपको टैग मिलेगा तो आप एचओडी बनेंगे, डायरेक्टर डीन बनेंगे तो आप लीडर बनेंगे. यू आर ऑलरेडी लीडर्स ऑफ योर फील्ड. थिंक बिग, बड़ा सोचो. हमारे जैसे स्टार्ट लिया होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने. He became the president of the country. He was from the academic arena. सोच बड़ी होनी चाहिए इंसान की, वो सोच उसको एक बड़ा व्यक्ति बनाती है. एक लड़का एक बार खड़ा होता है, सामने से कार पे जा रहा होता है एक व्यक्ति, उस बच्चे को देख के कार रोकता है, बोलता है बेटे आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूं. वो गाड़ी से बड़े गर्व से वो ड्राइव कर रहा होता है और वो बच्चा साथ बैठा होता है. वो बच्चे को बोलता है बेटे तुम्हें पता है ये कार मुझे किसने दी है? वो बोलता है नहीं मुझे पता नहीं पता. कहता है ये कार मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट करी है. तो बच्चा सोचने लग जाता है. वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे पता है बेटे तू क्या सोच रहा है, तो तू यही सोच रहा है ना कि काश तेरा भी कोई दोस्त तेरे को कार गिफ्ट दे. वो बच्चा बोलता है नहीं मैं ये नहीं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि काश एक दिन ऐसा आए जब मैं अपने किसी दोस्त को कार गिफ्ट दूं. See the beauty of thought process. एक कागज के टुकड़े से किसी ने कहा तुम कितने भी वैल्यूएबल, कितने भी कीमती क्यों ना बन जाओ, पर रहोगे तो तुम कागज का टुकड़ा ही ना. तो उस कागज के टुकड़े ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला था. कहते हाँ तुम्हारी बात सही है, मैं रहूंगा तो कागज का टुकड़ा ही, लेकिन इस कागज के टुकड़े को आज तक किसी ने कभी डस्टबिन में नहीं फेंका. जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ थॉट प्रोसेस. नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे. कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदल दो किनारे बदल जाएंगे. दैट इज द ब्यूटी ऑफ थिंकिंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड. जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के होते हैं वो लोगों का स्टाइल, वो लोगों के जीने का ढंग ही बहुत अलग होता है. तो थिंक बिग वॉट एवर यू आर थिंकिंग. यू कैन प्ले द गेम और यू कैन चेंज द गेम. मैं हमेशा कहता हूं कि गेम खेलनी है, ये गेम जीतनी है. दोनों बातों में से डिसाइड हमें करना पड़ेगा. हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि हमने जिंदगी में क्या करना है. हम आ गए हैं जिंदगी में तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, जिंदगी तो काट ही लेंगे. या तो ये वाली थॉट प्रोसेस पे चलना है कि यू कैन प्ले द गेम, और जिंदगी में आए हैं तो जिंदगी को बदल देना है. दुनिया को जो हमारे कांटेक्ट में आएगा उनको भी एक अच्छी राह दिखाने की कोशिश करनी है. अपनी जिंदगी को भी मायने देने हैं और अपनी जिंदगी में जाने से पहले कुछ बड़ा काम करके जाना है. ये सोच के साथ जब हम अपने काम पे उतरेंगे तब आप देखिएगा कि आपका जो ऑरा है, आपकी जो सोच है, आपकी जो डिलीवरी है, आपके जो कहे हुए शब्द होंगे वो कैसे लोग उसको फॉलो करते हैं, कैसे स्टूडेंट्स आपको एक बेस्ट टीचर की रेटिंग देते हैं. आप मुझे शॉर्ट में बताने की कोशिश करें, हम आई थिंक 10-15 मोर मिनट्स वी आर टुगेदर, कि आप अपने इंस्टीट्यूशन में
एज ए लीडर आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? प्लीज इंटरेक्ट. पार्टिसिपेट करिए, आप बताइए. Yes, anybody would like to tell what type of changes he or she would like to bring in her or his organization? Just in few lines. So this is Palani Swami. Yes, Mr. Swami. So I want to make my institution leadership to bring as a democratic one. Okay. So first of all, everybody is in this world to live peacefully and happily. That is the only thing. So whenever we leave the institution after working 6 or 8 hours, okay, we should go our home happily. So that is the leadership to bring everyone in his among the other peoples. May I correct, sir? Yes, Hello. perfect. Very nice, very good. Good thoughts. Thank you, sir. Perfectly said. बहुत अच्छा participation है आपका. Very nice. Yes, anybody else? Sir, Sandhika here. Sir, first of all, I would like to change my behavior pattern and thinking process. Then I will try to lead by setting the examples. Very nice. Sandhika ma'am, you are from which place? Sir, I am from Bhilwara, Shiv Charan Mathur Institute of Management and Technology. वेरी नाइस संधिका मैम, बहुत बड़ी बात कही है. देखिए, आप पहले खुद को बदलना चाहती हैं. मैं सोचता हूँ कि ये तो सोच ही बहुत बड़ी है. आपने बदल लिया, आपने खुद को बदल लिया, तो आपके लिए तो सब लोग बदल जाएंगे. बहुत अच्छा है. वेरी नाइस. Thank you, sir. Sir, I'm Satish Chandran from KPR Institute of Engineering and Technology, Coimbatore. Yes, Satish ji, very nice. I would like to be a participant in most of the activities that the leader of the institution does. So it's kind of a participative leadership is what is Very nice. I'm looking at. Yes, good. Satish ji, if you will start participating, lot of things will change in your life. I believe me, lot of things will change in your life. Your motivation level will change. You will always remain enthusiastic. You will always feel that now I want to do this thing, I want to do that thing. So many good things will happen in your life. Yes, sir. Anybody else? Thank you very much, sir. Welcome. Anybody else? Okay, I'll proceed from here. And definitely you think what best changes you would like to bring after hearing this lecture. Definitely a lot of things will come in your mind. Institution will talk more on institution leadership now. It is more than academics and administration. Believe me, people are confined ki institution mein hai. We are in this position. We have to dictate only. We have to tell the things to be done, these things to be done. No, it is more than academics and administration. We need to focus on the individual development plan also. देखिए, सिर्फ काम कहना, काम करो पैसे ले रहे हो, काम करो पैसे ले रहे हो, काम करो is not enough. इंडिविजुअल प्लान, हर व्यक्ति का इंडिविजुअल प्लान कि आप रिसर्च पे ऐसे करिए, आप रिसर्च में जो जिसका रिसर्च में अच्छा है उसको बोलिए कि आप दूसरों को हेल्प करिए. किसी को बुक लिखना है, किसी को पेपर लिखना है, किसी को कॉन्फ्रेंस में जाना है, किसी को प्रेजेंटेशन बनाना है. ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स. किसी को ट्रेनिंग प्रोग्राम देने जाना है, आउटरीच होना चाहिए आपका. कुछ ना कुछ आपके गोल्स होने चाहिए लाइफ में. इट शुड बी पेन डाउन होने चाहिए. ज्यादातर हम गोल बनाते हैं 7 जनवरी तक वो गोल वैनिश हो चुके होते हैं. तो इंडिविजुअल प्लान, डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए. टाइम टू टाइम आप अपनी टीम को रिमाइंड कराते जाओ कि हमें 6 महीने में, 3 महीने में यहां तक अचीव करना है. राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ ए ट्रू लीडर. नरसिम्हा राव जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, पूरी अपोजिशन, पूरी अपनी गवर्नमेंट को छोड़कर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा था. ये आज तक लोग इस बात का एग्जांपल देते हैं, बिकॉज अटल बिहारी वाजपेयी जी वाज द बेस्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट ओवर देयर फ्रॉम इंडिया, ऑल्दो ही वाज इन अपोजिशन. तो नरसिम्हा राव जी नेवर थॉट ट्वाइस कि भाई ये अपोजिशन वाले को मैं क्यों चांस दूं, मैं तो अपने किसी को चांस देता हूं. बट
It was a matter of right. It was a matter of representing a country, not any party. So he thought above party and sent Atal Bihari Vajpayee ji to represent our country, India, over there, because Atal Bihari Vajpayee ji was one of the excellent speaker. He was the best person to represent. A leader does not need to be expert in everything. He or she needs to be just good at getting the right people for the right job as per need. Beautifully said. जिसने भी बोला है बहुत ही बड़ी बात और बहुत ही जबरदस्त बात बोली है कि लीडर का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस अगर उसको इतना अगर वो जानता है कि सही व्यक्ति को, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. अगर आप अपने से अपोजिशन वाले को चांस क्यों दोगे? जब आप काम को इंपॉर्टेंस दोगे, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंपॉर्टेंस दोगे, जब आप अपने ईगो को साइड पे कर दोगे, तब आप किसी को दोगे. ये कहने को बहुत आसान है कि राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन, बट वो राइट पर्सन आइडेंटिफाइड अगर अपोजिशन का है तो भी अगर हम उसको देते हैं तो हमारे लिए बड़ी बात है. एम्प्लॉय एंगेजमेंट होता क्या है, आप भी बिलीव करेंगे मेरी कुछ बातों से. देखिए एम्प्लॉय एंगेजमेंट में होता क्या है, अगर मान लो 50 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं जबरदस्त, ऐसा लग रहा है कि 10 लोग ही सारा काम कर रहे हैं. 40 people are just there for the sake of employees, that's all. वो जैसे कहते हैं ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यू हैव, 50. फिगर एक भरने के लिए है वो 40 एम्प्लॉइज. वो देखिए वो किसी की गलती यहां पे नहीं है. पॉइंट है कि अगर हम 50 लोगों को थोड़ा थोड़ा काम दें, उनसे काम लें, तो कितना बड़ा वर्कफोर्स क्रिएट होता है. और अगर 10 ही लोग काम कर रहे हैं, दे आर सो बिजी, दे आर सो स्ट्रेस्ड आउट, दे आर एंगेज्ड. सो दिस इज नॉट द दिस. आप ये तो वही हुआ कि आपकी बोट चल रही है और बोट टिल्टेड होके पानी में चल रही है, टिल्टेड बोट है. एम्प्लॉइज एंगेजमेंट अगर आप कर पाते हो सही ढंग से एज ए लीडर, तो बहुत फायदा होने वाला है आपको. डेलीगेशन होता क्या है, और लोग कहते हैं हमें अथॉरिटी मिलनी चाहिए. भैया हमें अथॉरिटी मिलनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दो. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड, नंबर 1. नंबर 2 इज डेलीगेशन इज एन आर्ट. कब किसको कौन सा काम देना है, कब किससे कौन सा काम लेना है, कितना काम देना है, कौन ये काम अच्छे से कर सकता है, कौन जस्टिफाई कर सकता है, कौन जल्दी कर सकता है, कौन फ्लॉलेस कर सकता है, किसको इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए इसमें, किसको इंपॉर्टेंस कम मिलना चाहिए, क्योंकि हमें राइट पर्सन को देना है. एम्पावरमेंट, देखिए आप किसी को भी अगर काम देते हैं अपने अंडर में, तो उसको एम्पावर तो करिए. डेलीगेट करना, काम देना इज नॉट इनफ. आप उसको एम्पावर कीजिए. आप बोलिए कि देखिए आप काम करिए, गलत सही है तो मैं बैठा हूं, आप कोशिश करिए, आप आगे बढ़िए, आप कर सकते हैं. एम्पावर, what is this? Without empowerment, how a person will work? Knowledge sharing is again very important. कुछ भी चीज सीख रहा है कोई भी व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ भी सीख के आ रहा है, बोले भैया शेयर करिए आप सबसे. होता क्या है, अब देखिए होता क्या एक्चुअली, और इंस्टीट्यूशंस में होता क्या है, एक व्यक्ति पेपर लिख रहा है और डिपार्टमेंट में किसी को पता ही नहीं है. बुक निकल के आ गई, पब्लिश हो रही है, हो गई, पता लग रहा है कि कब लिख दी बुक तुमने, ये किसी को पता ही नहीं है. अरे चोरी छिपने के लिए थोड़ी अब वहां पर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं. आप बताओ कि मैं लिख रहा हूं, भाई तुम भी लिखो. इट इज एंडलेस. समुद्र में कोई कहे कि मैं भैया ये मछली मैं ही खाऊंगा, मछली ही मछली, काम ही काम है. दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कमी थोड़ी किसी के लिए. अगर ऐसा कल्चर डेवलप करना है तो ये तो उल्टा हम वी आर नॉट एट द राइट प्लेस. अगर हम ऐसे सोच रखते हैं, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, भी मेरे फ्रेंड ने बोला कि डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए. देखिए वही बात आ गई. अगर हमें डर लगता है एक दूसरे से, तो ये ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने का क्या फायदा. फीडबैक, कीप वैलिडेटिंग. कहते हैं फीडबैक इज द चैंपियन ऑफ ब्रेकफास्ट. फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस. फीडबैक लेने से, तो अगर आई एम इन द पब्लिक स्पीकिंग और मुझे 10 लोग कहते हैं भाई साहब आपका सर ये लेक्चर बढ़िया नहीं गया, तो मुझे मानना पड़ेगा, मुझे एग्री करना पड़ेगा, मुझे क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना पड़ेगा, मुझे अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा. सेल्फ एनालिसिस विल लीड टू सेल्फ रियलाइजेशन. मुझे रियलाइज करना पड़ेगा कि कहां मैं गलत हूं, कहां ठीक हूं, व्हाट इंप्रूवमेंट्स आई कैन मेक. तो टेकिंग फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन. अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं तो फीडबैक जरूर लीजिए. कंपैरिजन किल्स क्रिएटिविटी. कंपैरिजन हो ही नहीं सकता. देखिए आप कैसे कंपैरिजन हो सकता है, एवरीबॉडी इज यूनिक. 2 लोगों में लोग कंपेयर करते हैं, मैं कहता हूं कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं आप. जहां आप कंपैरिजन करेंगे वहां क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी. वो आपने बहुत अच्छा, यू हैव ऑलरेडी हर्ड दिस सॉन्ग, इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग.
तू तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुम में ऐब देखा, हुनर तो न देखा, तू तो है अलबेला. Everybody of us are unique in this word. Our students are unique in this word. Our faculty members are unique in this word. Try to see the best part of their performance. बेस्ट क्वालिटी आप उनमें ढूंढिए और देखिए कैसे चीजें बदलती हैं. सब में थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को पॉलिश कीजिए. होन द टैलेंट एज अ लीडर. आप देखिए कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, और कंपैरिजन अगर आप नहीं करेंगे तो क्रिएटिविटी विल प्रिवेल, विल एग्जिस्ट. अपलिफ्ट, घर में हम कैसे एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? कभी हम घर में घर वालों को कभी एक दूसरे को धक्का नहीं देते. कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, हम घर वालों को अपलिफ्ट करते हैं. दैट इज द रूल. और ऑफिस में आके क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में आके क्या होता है, वो भी हमारी सेकंड फैमिली है. ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अवर सेकंड फैमिली बिकॉज वी आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम ओवर देयर. हमारे कुलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, किसी से हम सीख रहे हैं, किसी को हम सिखा रहे हैं. हम अपना जिंदगी का बहुत बड़ा, हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है हमारी. हम कितना समय वहां पर देते हैं, अपनी जिंदगी का कीमती समय उस ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं. उस ऑर्गेनाइजेशन से हमारा ब्रेड बटर चल रहा है. वहां हमें किसी को धक्का नहीं देना, हमें सबको एक दूसरे को उठाना है. बिलीव मी, होता क्या मैं आपको बताता हूं. एक बार एक पंजाब में बस जा रही थी, 12 सरदार लोग, भाई लोग बैठे हुए थे, और इट्स नॉट जोक ऑन एनीबॉडी बिकॉज माय मैक्सिमम फ्रेंड्स आर सरदार. 12 सरदार भाई लोग बड़े बड़े तकड़े तकड़े बैठे हुए थे. बस चलते चलते रुक गई, और उन्होंने बोला भाई धक्का लगाना पड़ेगा. फैमिलीज भी बैठी थी, बच्चे भी बैठे थे. तो 12 बड़े बड़े तकड़े सरदार उतरे नीचे और उन्होंने धक्का लगाना शुरू किया. बस फिर भी नहीं चली. लोग परेशान हो गए, ये क्या हो रहा है भैया, 12 लोग उतरे, अभी भी बस क्यों नहीं चल रही. तो लोगों ने खड़े होकर देखना शुरू किया, आगे पीछे देखना शुरू किया. तो क्या देखा कि पीछे से 6 लोग धक्का लगा रहे हैं और आगे से 6 लोग धक्का लगा रहे हैं. हमारे डिपार्टमेंट्स में भी यही होता है. सेम थिंग हैपन इन अवर डिपार्टमेंट. Half of the energy is working to uplift the organization, half of the energies are working to negatively against the department, against the organization. So we are there in the organization just to boost up the things, just to enhance the things, just to uplift the things. सोच भी नहीं सकते हम कि ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुरा सोचेंगे. नो टू पॉलिटिक्स. जहां पॉलिटिक्स होगी वहां लीडरशिप नहीं होगी, और इनफैक्ट वहां पर नेगेटिविटी होगी. वही बोट विल बी टिल्टेड, फ्यू विल वर्क, फ्यू विल नॉट वर्क. देयर विल बी नो एम्प्लॉय एंगेजमेंट. एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में समझना बहुत जरूरी है. पीपल कैन बी वेरी वेरी एफिशिएंट बट दे मे नॉट बी इफेक्टिव. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू ब्यूटीफुल वर्ड्स. फ्लेक्सी अप्रोच होना बहुत जरूरी है, रेडी टू चेंज होना बहुत जरूरी है. और भागवत गीता में जो अर्जुन था, अर्जुन इसलिए अर्जुन नहीं था, अर्जुन बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति था. वो योद्धा ही नहीं था, वो समझदार व्यक्ति था, वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था. कि उसको भागवत गीता का जब ज्ञान मिला, कहा वो शुरू में कह रहा था कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं नहीं उठा सकता, मेरे को कुछ हो रहा है, मैं गिरने की, मतलब मैं कुछ भी हो सकता है मुझे. और वही अर्जुन को जब गीता ज्ञान मिला तो उसने कहा नहीं, अब मैं युद्ध करूंगा. That is the change which he brought in that situation. ये चीज अर्जुन से सीखने वाली है. भागवत गीता भी यही बताती है कि रेडी टू चेंज रहो अपनी जिंदगी के अंदर, आपको और आगे बढ़ना है. बहता हुआ पानी एक जिंदगी है, रुका हुआ पानी एक मौत है. स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो हमसे खुश हैं, दैट इज द बेस्ट सर्टिफिकेट विच वी कैन गेट एंड वी शुड गेट फॉर अवर वर्क. हम कुछ भी कर रहे हैं सब बेकार है अगर हमारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं, हमारी फैकल्टी हमारे से सेटिस्फाइड नहीं, हमारे उनके पेरेंट्स हमारे से सेटिस्फाइड नहीं, अगर हम समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो इस ऑर्गेनाइजेशंस का होना ना होना बेकार है बिल्कुल. ऑर्गेनाइजेशंस का ये मतलब नहीं कि इतने एडमिशन हुआ, इतना पैसा हुआ, क्लासेस लगाई, बात खत्म. ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट डज नॉट मीन दिस. दे आर देयर फॉर सर्विंग द मैनकाइंड, सर्विंग द सोसाइटी, becoming legends, becoming example for the country, for the state, for the people of that city. ऑर्गेनाइजेशन वो है जैसे लोग कहे हाँ ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ये यूनिवर्सिटी बड़ा अच्छा काम करती रहती है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़े हुए बहुत अच्छे हैं, वो यूनिवर्सिटी है. इतने हजार बच्चे हैं, इतना करोड़ रुपए आता है, ये व्हाट इज दिस? बिजनेस थोड़ी चल रहा है.
स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की वजह से आज मैं अपनी सीट पे हूं तो ओनली बिकॉज ऑफ माय स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट नहीं है तो कोई फैकल्टी पढ़ाने नहीं आएगी, कोई डीन डायरेक्टर वहां ऑफिस में नहीं बैठेगा। फियर नहीं होना चाहिए। जब आपकी मीटिंग्स होती हैं तो आपकी मीटिंग में डर का माहौल नहीं होना चाहिए। डर क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। डर लोगों को बोलने नहीं देगा, उनके आइडियाज को आगे आने नहीं देगा। इनफॉर्मल विजिट्स भी आपकी होनी चाहिए आपके लोगों के साथ, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो वो उनके मन में एक डर बैठा रहेगा कि हमारे बॉस हैं, हमारे सर हैं, तो इनसे लिमिटेड बात करनी है। ग्रैटिट्यूड की भावना आप में होगी तो कल को आपकी फैकल्टीज में होगी, आपकी फैकल्टीज में होगी तो कल को आपके स्टूडेंट्स में होगी। आप कितने थैंकफुल हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, अपने समाज, अपने देश के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति, भगवान के प्रति आप कितने धन्यवादी हैं, ये बहुत बड़ी बात है ये जो मैं आपसे कह रहा हूं। आई डिलीवर लॉट ऑफ टॉक्स ऑन हैप्पीनेस। मैं 3 दिन तक पूरी फुल डे वर्कशॉप्स देता हूं हैप्पीनेस के ऊपर, जिसमें ग्रेटिट्यूड के ऊपर जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ग्रेटिट्यूड है तो सब कुछ है, ग्रेटिट्यूड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हमने अपनी जिंदगी में आज तक ये नहीं सीखा कि मुझे किसी का धन्यवादी होना चाहिए, आज मैं हूं तो मेरे को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, अगर मैंने ये नहीं सीखा आज तक तो मैं किस लीडरशिप की बात कर रहा हूं और मैं किस लीडरशिप से औरों को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा हूं। आई डोंट नो माई सेल्फ ऑल्सो। लुइस वी गर्सनर ने बहुत ही अच्छी बात कही है, कहते पोस्टर लगा दो, बदल दो बदल दो, पोस्टर लगा दो, स्लोगन लगा दो, पेपर लगा दो, पेपर वर्क कर दो। Just wait for a second. Yes. लुइस गार्सनर ने बहुत ही अच्छी बात, जूनियर ने बहुत ही अच्छी बात की। कहते चिप बदल दो, व्हाट डू यू मीन बाय बदल दो? पोस्टर्स बदल दो, स्लोगन्स बदल दो, पेपर वर्क कर दो, प्रेजेंटेशंस बना दो। कहते इससे क्या हो जाएगा? कहते अपने कल्चर को चेंज करो। अगर आप नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो तो दैट इज लीडरशिप। कल्चर कौन से चेंज की बात? लोगों के मन में एथिक्स होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, उनको कुछ देने की भावना होनी चाहिए, किसी के लिए कुछ अच्छा करने की भावना होनी चाहिए, और सब एक जैसी होनी चाहिए। जेलस फैक्टर नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल कल्चर इतना इतना बढ़िया कल्चर होना चाहिए कि पीपल शुड लव टू कम टू द ऑर्गेनाइजेशन। उनको घर से निकलने में खुशी होगी, यार मैं आज अपनी इंस्टीट्यूट्स में, अपनी मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, आज मेरा बड़ा अच्छा दिन जाने वाला है, बहुत बढ़िया मैं चीजें सीखने वाला हूँ, वहां पर बड़े अच्छे अच्छे लोग वहां मिलने वाले हैं। ओवरऑल कल्चर अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए यू आर गोइंग टू बी ए वेरी वेरी ग्रेट लीडर इन द कमिंग टाइम्स। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ओवरऑल कल्चर चेंज करने की जरूरत है, और उसके लिए एक बड़ी सोच, जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए, एक सेवा की भावना, एक धन्यवाद का जो भाव आपके अंदर होना चाहिए, ये इतनी सारी क्वालिटीज का जो ब्लेंड है, दैट इज नोन एज लीडरशिप। उस लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और बहुत ही बड़ी बात है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि अगर आप खुश हैं, अगर आपके चेहरे पे मुस्कान है, दैट विल मेक यू एंड योर फैकल्टी मोर कैपेबल in terms of healthiness and being more energetic and being more happy. अगर आप चाहते हैं आपके लोग सिर्फ हाथ और पैरों से ही काम ना करें, अपने दिल और दिमाग से भी काम करें, तो आप उनको खुश रखिए। जिंदगी में जीना जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। चाहे जिंदगी में हो कितने भी गम, लेकिन चेहरे पे मुस्कान जरूरी है। Thank you very much. God bless you. I'm really happy that you all participated and you already want to learn new things and you want to do something big and become a great leader in the coming times. Although you may be, but you want to add on, you want to come to the next level of leadership. Thank you very much once again. Thank you, Dolly ma'am, for this opportunity, and definitely you are doing a great job. The trust of yours is doing a great job by conducting this program. Any program which is to be conducted needs a lot of energy, time, lot of things it is required, and a lot of initiative is required. So really doing a good job. Best wishes. Thank you very much. God bless you once again. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Leadership is not about instructing people, but it is about the inspiring people. And
sharpening of a skill is very important for the leadership. So आप जो करते हैं लोगों से भूल जाएंगे, आप जो कहते हैं लोगों से भूल जाएंगे, लेकिन आपने लोगों को कैसा महसूस कराया, लोग हमेशा ये याद रखेंगे. So sharing of responsibility and authority is the key point of leadership. So thank you, Professor Vikas Arora, sir, for such a motivational, happiness and enthusiastic speech. Thank you so much. Thank Thanks you to very all. much. Thank you. Thank Thanks to all to participants for all our joining the program participants. from all over India. I hope you are going to rock in the coming times. Once again, thank you very much. Thank you, sir. Thanks to all our participants. I already shared the attendance link for the second session. That is session number 5. So it's our session number 5 on the second half of day 2. Thank you so much. And tomorrow we'll start our session by 10:15 a.m. Link will be same for all the sessions, for all the days. Thank you so much.